As we have started our new chapter, alternating current, and you already know that what is alternating current, which changes its direction periodically, and it is represented like this. This one is positive cycle, this one is negative cycle. So first we revise all the previous lectures which you have gone through. First we will see the average value of the current. How we will find the average value of the current? As we know, I is equal to dq by dt, and this I is equal to dq by dt is the instantaneous value of the current in small interval, and I average is equal to q by t. I average is given like I average is equal to q by t. This q is the total charge. From this equation, I is equal to dq by dt. The value of dq is I dt. If we want to find out the total charge q, then what we will do? Integrate on both sides, then we will get q is equal to I dt. Put this value into this equation, we will get the value of I average, that is integration of I dt upon this integration of dt. Integration of dt is equal to t, so we will write this t as integration of dt. So I average is given as integration of I dt upon integration of dt. So in general, if we have to find the average of any quantity, then what we will do is जिस भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जस्ट डू द इंटीग्रेशन ऑफ दैट क्वांटिटी विद टाइम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt. We will see this with an example. Let y is a function of t, but this quantity should also depend upon time t. Let y is a function of t, so the average of y is y dt upon t. जिस क्वांटिटी की एवरेज फाइंड आउट करनी है, उस क्वांटिटी की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू t अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ t. फॉर एग्जाम्पल, इफ I is equal to 3t square, find the value of this average current in 2 seconds. तो हम क्या करेंगे? I is equal to 3t square, I average is equal to integration of I with respect to t upon dt, integration of dt. Put the value of I here. This is 3t square, and we have given the limits that we have to find the average in 2 seconds. So 0 to 2. Integration of I is 3t square. 3t square is integration of t square is t cube upon 3, and limit is 0 to 2. Same in denominator, we will get t, limits is 0 to t. So you know how to solve this integration. Just do upper limit minus lower limit. Same in denominator, it is as 2 minus 0. So we will get, on solving, I average is 4 ampere. Clear? So if you have to do if you want to find out the average of power, and power again is a function of t, then average power कैसे निकालेंगे हम? इंटीग्रेशन ऑफ पावर विद टाइम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt. क्लियर? and in last chapter electromagnetic induction, you have done AC जनरेटर, और AC जनरेटर में हमने EMF ड्राइव किया था कि क्या होता है, करंट की वैल्यू भी ड्राइव की थी. क्या होती है EMF? क्या होता है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. हेयर ई नॉट इज पीक वैल्यू. दिस इज EMF, or you can say voltage. It can also be written like V is equal to V naught sin omega t. This omega is angular frequency and this is time. Okay,
and similarly we have I is equal to I naught sine omega t. In this chapter we will solve the circuit in which there is a AC current is flowing. Firstly we will see that how the circuit behave if it has only resistor in it and the current and AC current is flowing in it, and then we will see if there is a inductor involving in the circuit, same AC current is in the circuit. Third, we will see if there is a capacitor in the circuit. Then we will study the combined effect of these. Firstly RL, then LC, then we will see the effect of all these three, that is LCR circuit. Okay, in all this circuit we will see what is the value of EMF, what is the value of current. So before that, first we will see what is the average value of the current for full cycle. Full cycle, like this is one full cycle. If we want to find out the I average for this complete cycle, this is 0 to t one cycle, this is half, and it can be written like t by 2. So what is the value of this? What is the value of I average for full cycle? And then we will see the I average for half cycle. As you have already solved this into your assignment, that I average for full cycle is 0. So we will see how it comes. As I told you, I average is integration of I dt upon dt. So what is the value of I? I is I naught sine omega t. We have to find this I average for full cycle. Full cycle is 0 to t, so limits are from 0 to t, and in denominator again 0 to t. So integration of this term is only t, and limits are upper limit minus lower limit t minus 0, it is only t. So we can write in denominator t only. Solve the numerator part. Now I naught is constant. We have to do here the integration of sine omega t. Integration of sine omega t is minus cos omega t. Then we have to do the integration of this angle also. I naught integration of sine omega t is minus cos omega t, and integration of this omega t is डिनोमिनेटर में आएगा ओमेगा. लिमिट्स हैं 0 to t, डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी हमने t सॉल्व कर लिया. नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, I naught minus cos omega t, this is upper limit. We will take this negative outside. Upper limit minus lower limit. Omega t की value 0, so this whole term becomes 0. We can write cos 0 upon omega तो है ही denominator में, and we have t also. ठीक है. Now cos 0 क्या होता है? cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. यहाँ पे हम t की वैल्यू क्या पुट करेंगे? माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा. t की वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई बाय ओमेगा. माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन ओमेगा टी. ओमेगा से ओमेगा कैंसिल. कोस 2 पाई इज कॉस 0 भी 1, 2 पाई भी 1. सो माइनस आई नॉट 1 minus 1 upon omega t. 1 minus 1 0. So this 0 into I naught is 0. So I average comes out to be 0. Clear? Now this I average is for full cycle. Full cycle में I average की वैल्यू क्या है? 0. Now if we want to see the I average for half cycle is I average for half cycle is 2 I naught बाय पाई. हाफ साइकिल में लिमिट्स हम क्या लेंगे? हम लेंगे 0 to t by 2. हाफ साइकिल में लिमिट्स लेंगे हम 0 to t by 2 और 2 I naught बाय पाई. और अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे 2 upon पाई, देन इट कम्स आउट टू बी 0.637 I naught. चाहे स्मॉल आई लिखो चाहे कैपिटल लिखो, इट्स अप टू यू. सो आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल इज 0.63 I naught. Okay.
सो विल सी हाउ टू फाइंड आउट। सेम है, बस यहाँ वहाँ पे लिमिट्स हमारी 0 टू क्या थी, t। यहाँ पे हमारी लिमिट्स क्या आएंगी, 0 टू t/2। वहीं से चलते हैं हम, यहाँ से जहाँ पे हमने लिमिट्स अप्लाई की थी। देखो आई एवरेज ये किसके लिए है, हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए। आई नोट तो मेरा कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाला था। इंटीग्रेशन हम वहाँ पे कर रहे थे साइन ओमेगा टी की ना, विद रिस्पेक्ट टू डी टी, और लिमिट्स यहाँ पे 0 टू t/2 लेंगे, और डिनोमिनेटर में t आएगा, और लिमिट्स क्या आएंगी, नहीं हाँ, लिमिट्स क्या आएंगी 0 टू t/2, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते हैं। आई नोट अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी, तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 टू t/2। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t/2 माइनस 0 इज t/2 ओनली। सो ऑन सॉल्विंग दिस आई नोट बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू फिर से पुट करो यहाँ पे t/2, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे ओमेगा के साथ t/2, ये डिनोमिनेटर का ओमेगा है और ये t/2 है, तो मैंने इकट्ठा लिख दिया ओमेगा t/2, ठीक है। तो t की जगह अगेन हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। जब ये पुट किया यहाँ पे तो क्या आया, नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी की जगह ओमेगा/2 है, टी की जगह है 2π/ओमेगा, ठीक है। माइनस तो 0 ही आएगा, मतलब माइनस यहाँ पे कॉस 0 आएगा, कॉस 0, ठीक है, ओमेगा t/2, तो क्या आया, माइनस आई नोट, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो ये आ गया ओमेगा t/2। तो क्या आया सॉल्व करके, माइनस आई नोट माइनस माइनस प्लस, मतलब -2 ओमेगा t/2। यहाँ पे भी t को हम क्या पुट करेंगे, 2π/ओमेगा, क्या आया यहाँ पे फिर, माइनस माइनस कैंसल, 2i0 अपॉन ओमेगा/2, टी की जगह पुट करेंगे 2π/ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया 2i0 पाई। दिस इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर हाफ cycle. This is 2i0/pi. Clear? So similarly you have to find the average value of voltage, that is V is equal to V0 sin omega t, and so V average, if you do the same calculation by using the value of V instead of I, as I do, I is equal to I0 sin omega t. Now in integration you have to take V is equal to V0 sin omega t, then do again, first apply the limits from 0 to t for full cycle and 0 to t/2 for half cycle, then you will get the average value। हाफ साइकिल में तो आपकी 2v0/पाई ही आएगी जैसे हमारी करंट की आई है, और फुल साइकिल के लिए वी एवरेज आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आपने असाइनमेंट में भी ये सेम क्वेश्चन किया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द, इन केस ऑफ ईएमएफ यू हैव टू डू द सेम कैलकुलेशन। दिस V0 इज पीक वैल्यू of the voltage and I0 is the peak value of the current। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आरएमएस करंट अगर हमने फाइंड करना हो, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस की फुल फॉर्म क्या है, रूट मीन स्क्वायर, और आरएमएस होता क्या है, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ कंडक्टर एज इज प्रोड्यूस्ड बाय AC when passed for the same time। Clear? This RMS value is also called effective value।
So you can write this as IRMS and I effective. Both are same. Again, कैसे फाइंड RMS वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं RMS वैल्यू? फर्स्टली करंट की RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप पहले क्या करोगे? स्केयर करोगे. दिस इज द वे टू फाइंड आउट द RMS वैल्यू. फर्स्ट डू द स्केयर ऑफ द टर्म, देन फाइंड इट्स एवरेज. एवरेज फाइंड आउट करके डू द रूट. सो दीज आर द स्टेप्स बेसिकली. जैसे हमने IRMS फाइंड आउट करना है तो हम पहले क्या करेंगे? I का स्केयर करेंगे, I स्केयर. उसके बाद इसकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे. जो एवरेज का साइन है वो ये होता है, ठीक है. इस साइन का मतलब क्या है कि हम I पहले हम स्केयर कर रहे हैं, फिर हम उसकी एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर क्या करो? रूट लगा दो. इन दिस वे यू विल फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट. जो एवरेज है, एवरेज वैल्यू हम ऐसे ही लिखते हैं. मतलब इस साइन का मतलब है कि हम दिस इज़ द एवरेज ऑफ I, और I एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. और ऐसे तो हम लिख ही रहे थे I एवरेज, तो कंफ्यूज नहीं होना. इससे हम डिनोट करते हैं I एवरेज. दीज आर द सिंबल्स, ठीक है. तो जो एवरेज वैल्यू है वो क्या आती है? एवरेज नहीं, RMS वैल्यू. अगर हम V की वैल्यू लेते हैं, V इज़ इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और फिर I की लेते हैं, I इज़ इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. जब हम सेम एक्सप्रेशन यूज़ करके IRMS फाइंड आउट करेंगे तो हमारी IRMS की वैल्यू आएगी I0 बाई √2, ठीक है. दिस इज़ द पीक वैल्यू I0, और यू कैन से दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन RMS एंड पीक ऑल्सो. सो VRMS आपका आएगा V0 बाई √2. सो अब हम देखते हैं ये आती कैसे है वैल्यूज़, ठीक है. I will show only the value of this current IRMS, that is I0 by √2. You will do by yourself the value of VRMS. Firstly, what we have to do is first पहले स्केयर करना है, फिर एवरेज, फिर अंडर रूट, ठीक है. तो क्या करेंगे हम? देखो I की वैल्यू है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. पहले तो स्केयर कर दो, I0 स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी. इसके बाद आपको क्या करना है? स्केयर करके इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, फिर रूट लगा देंगे हम, ठीक है. अब एवरेज फाइंड आउट करेंगे, और एवरेज फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? अब हम एवरेज किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं? स्केयर वाली टर्म की एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं. देखो स्केयर की एवरेज फाइंड आउट करनी है, कोई भी क्वांटिटी की एवरेज फाइंड आउट करनी है, उसी क्वांटिटी की इंटीग्रेशन कर दो. मतलब अब आप I स्केयर की इंटीग्रेशन करोगे. अब हमारा जो होगा रिप्रेजेंटेशन वो ऐसी होगी, I स्केयर. I की नहीं कर रहे हम, I स्केयर की इंटीग्रेशन करेंगे हम, उसी क्वांटिटी की जिसका आप एवरेज निकाल रहे हो, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे IRMS है, 0 to T लिमिट्स है मेरी. I0 स्केयर इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम, एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं. I0 स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू dt, और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ T dt. ये एवरेज है. हमने क्या करना है? एवरेज का रूट, इस सारे का अंडर रूट, ठीक है. अगर आपने अंडर रूट नहीं लगाना तो आप सारे को ऐसे भी लिख सकते हो ना, हाफ, ठीक है. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. देखो I0 तो कांस्टेंट है, तो मैं I0 स्केयर को एज इट इज़ बाहर निकालूंगी. I0 स्केयर अपॉन इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो T, मतलब स्मॉल t. लिमिट्स पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा? दिस कैपिटल D, 0 to T, ठीक है. तो उसके बाद क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. आपको फॉर्मूला ये पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना. मेरे पास ये है साइन स्क्वायर थीटा है, ये देखो साइन स्क्वायर, ये थीटा है ना ओमेगा टी. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. तो हम साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा मेरा ओमेगा टी है, उसकी जगह मैं ये पुट करूँगी तो क्या आएगा?
1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू तो ओमेगा टी है, तो हम ओमेगा टी लिखेंगे यहाँ पे 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी, इस पूरे का हाफ, मतलब मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, अंडर रूट नहीं डाला मैंने, हाफ लिख देती हूँ, डॉट हाफ, ठीक है। तो आई आर एम एस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा फिर यहाँ पे 2 टी इकट्ठा लिख रही हूँ मैं, आई नोट स्क्वायर 2 टी, तो इंटीग्रेशन किसकी है 1 माइनस कोस 2 मेगा टी की, पहले 1 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी, क्या आएगी स्मॉल टी माइनस ब्रैकेट कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, थीटा तो पूरा 2 ओमेगा टी है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंगल ऑल्सो दैट इज़ 2 ओमेगा, और पूरे की लिमिट्स है मेरी 0 टू टी, ठीक है। और इस पूरे को हमने लिखना है ऐसे, स्क्वायर रूट नहीं लगा रही मैं, सिर्फ हाफ लिख रही हूँ ब्रैकेट डाल के। इसको सॉल्व करो, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, देखो 0 टू t लिमिट्स है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फर्स्ट इस टर्म में पुट करोगे तो t माइनस 0 t ही आएगा, माइनस फिर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी, ब्रैकेट में लिमिट्स पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा साइन 2 ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट तो 0 है, 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, साइन 0 क्या होता है 0, तो 0 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब चाहे आप पहले यहाँ पे पुट कर लो, सेकंड तो लिमिट 0 ही है, लोअर तो मैंने लिखा नहीं वो, ठीक है। फिर चाहे पूरी ब्रैकेट में पहले सिर्फ अपर लिमिट ही डालो टी टी, फिर 0 0, तो लास्ट वाली 2 टर्म्स तो 0 ही आएंगी, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। तो मेरे पास क्या आया आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, यहाँ पे कैपिटल टी माइनस माइनस साइन 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा तो है ही, टी की जगह भी हम पुट करेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। और ये पूरी ब्रैकेट में आएगा हाफ, क्या आएगा फिर 2 ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, देखो ये पूरा एंगल है, ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर में था जो हमने सॉल्व किया था, तो जो कटिंग होगी वो मेरी ओमेगा की इसके साथ होगी, इसके साथ नहीं होगी, ठीक है, इसके साथ होगी। तो ये क्या बन गया साइन 4 पाई ना, साइन 0 0, तो साइन पाई भी 0, 2 पाई भी 0, 4 पाई भी 0, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ अकेला t आएगा। तो क्या आया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, एज ये सेकंड वाली टर्म तो 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ t ही आएगा, और ये पूरा है स्क्वायर रूट है ना, तो मैं उसको हाफ लिख रही हूँ, ये वाली टर्म 0 होगी, सिर्फ t आएगा मेरे पास, ये वाला t से t कैंसिल, क्या आया फिर आई नॉट स्क्वायर बाय 2, पूरा अंडर रूट है ना, तो आई नॉट स्क्वायर का अंडर रूट मतलब आई नॉट अपॉन रूट 2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट 2। यही मैंने आपको बताया था कि जो आर एम एस वैल्यू है वो आई करंट की आर एम एस वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 आती है, तो सेम हमने ये प्रूव भी कर लिया दैट आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, आई नोट स्क्वायर है, जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आई नोट ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली यू विल डू बाय योर सेल्फ द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो क्या करोगे यहाँ पे वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ना, देखो वी नोट स्क्वायर बाई टी सेम जैसे आई नोट स्क्वायर कांस्टेंट है, वी नोट स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये अंदर वाली कैलकुलेशन सेम रहेगी, डू बाय योर सेल्फ, you will get the answer as v naught by root 2, क्लियर है। तो अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये आई नॉट बाई रूट टू की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा आपके पास आएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.0
707 आई नॉट, या स्मॉल आई नॉट लिखो, कैपिटल आई नॉट लिखो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। पाई ये हमने 1/√2 को सॉल्व करके निकाला है 0.707। क्लियर है। अब आरएमएस वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है, बस उसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई कि वो कौन सा करंट है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वो करंट की पीक वैल्यू है, आरएमएस है या एवरेज है। वो हमेशा ही आरएमएस वैल्यू होगी। करंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। जैसे हमारे मतलब रूट मीन्स अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो एवरेज करंट है, कौन सा करंट है, वो पीक वैल्यू है करंट की कौन सी, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यू विल टेक दैट करंट एज आई आर एम एस। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास सर्किट है, सर्किट में है मेरे पास रेजिस्टर। ठीक है, तो उस रेजिस्टर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, तो हमने देखना है कि एनर्जी डिसिपेशन क्या हो रहा है उस रेजिस्टर में इन टाइम टी। करंट आई जा रहा है थ्रू आर, तो एनर्जी हीट डिसिपेशन क्या होगा या एनर्जी डिसिपेशन क्या होगा, सबको पता है दैट इट इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये रिलेशन आपको पता है। और मैंने क्या बोला कि करंट हमेशा आई आर एम एस ही होता है, मीन्स इंस्टेड ऑफ आई यू विल राइट आई आर एम एस ऑल्सो। बट ये हम प्रूव करके देखते हैं कि क्या सच में आई आर एम एस ही होता है। मतलब मैं यहाँ पे आई को ऐसे भी लिख सकती हूँ, दैट आई आर एम एस आर टी। ठीक है, देखो एनर्जी डिसिपेटेड अगर मैंने स्मॉल टाइम में देखनी है तो मैं क्या करूँगी, डी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी आएगा ना, तो फिर इंटीग्रेशन कर देंगे आई स्क्वायर आर डी टी। ये स्मॉल टाइम में था, उसकी इंटीग्रेशन करके मैं पूरी एनर्जी फाइंड आउट कर रही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज ई ओनली, आर कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर डी टी। अब दिस इज व्हाट, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी। देखो मैंने अभी बताया था कि आई आर एम एस कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई आर एम एस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसकी आर एम एस वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले तो उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद एवरेज, एवरेज करने के बाद अंडर रूट ना। और एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी क्वांटिटी की, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन करो उस क्वांटिटी की, ऐसे ना, ये है। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये दूसरी साइड जाके आई स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। इट मीन्स आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर ऐसे यही होगी ना। देखो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट था इस साइड जाके वो स्क्वायर बन गया, आई स्क्वायर। तो यहाँ से आई स्क्वायर आर एम एस हम ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी, है ना। इंटीग्रेशन अगर आप इसकी करोगे तो टी आएगी वो स्मॉल टी, तो मैं आई स्क्वायर आर एम एस टी इस साइड ले जाऊँ मल्टीप्लाई, तो आ गया आई स्क्वायर डी टी ना। अब देखो इस एक्सप्रेशन में देखो, यहाँ से आई स्क्वायर डी टी की वैल्यू है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू टी। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ ये वैल्यू आई स्क्वायर आर एम एस टी, तो देखो मैंने हीट डिसिपेशन ये होता है ना, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और मैंने बोला था कि आई को आप आई आर एम एस लिख सकते हो, और ये मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया दैट यस वी कैन राइट आई एज आई आर एम एस यहाँ से। ठीक है, तो इन टाइम टी जो एनर्जी डिसिपेशन हुआ है थ्रू रेजिस्टर दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस टी। सो एनर्जी जो डिसिपेशन हुई है एनर्जी की थ्रू रेजिस्टर आर, वो हुई है बाय बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ दिस करंट आई, that is I is equal to I naught sin omega t, which is flowing for time t, and this current is this energy dissipation through, or you can say by this current is same as if constant current IRMS flows in the resistor। जितनी एनर्जी की डिसिपेशन इस करंट के फ्लो होने से हुई है, सेम एनर्जी डिसिपेशन होगा अगर उस सर्किट में से IRMS फ्लो करेगा।
कहने का मतलब है कि दोनों डिसिपेशन सेम ही आएगी, एनर्जी डिसिपेशन, तो दोनों आई और IRMS सेम ही है इनकी वैल्यूज़ भी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आर, सिमिलरली आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो कि ये मैंने उसका निकाल के दिखाया आपको, IRMS VRMS आप अपने आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता देती हूँ जो हमने आगे जाके काम आएंगे, ठीक है। एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के, जैसे हम ये एवरेज फाइंड आउट करते हैं ना, साइन थीटा की एवरेज अगर आपने फाइंड आउट करनी है, साइन ये एवरेज है, एवरेज मैंने बताया था, चाहे आप ऐसे लिखो आई एवरेज, ठीक है, चाहे पैर में एवरेज लगा दो, मतलब जब एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो इसकी, मतलब आप ऐसे इंटीग्रेशन में करोगे ना, अगर आपकी इंटीग्रेशन में एवरेज फाइंड आउट करते हुए साइन थीटा आ गया अकेला, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। थीटा आपको पता है, थीटा हमारा यहाँ पे ओमेगा टी ही है, और अगर कॉस थीटा आ गया एवरेज फाइंड आउट करते हुए 0, और अगर इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया और आप एवरेज फाइंड आउट कर रहे हो तो हाफ, न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप सीधा वैल्यू यही पुट करनी है, आपने सॉल्व नहीं करना साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, जैसे मैंने अभी पीछे सॉल्व करके दिखाया था ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला पुट करके, तो आपने सीधा हाफ जस्ट वहाँ पे पुट करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सिमिलरली cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू भी क्या आएगी, हाफ आएगी, ठीक है। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या क्वेश्चंस करोगे या डेरिवेशंस करोगे ना, वहाँ पे भी आप सीधा लिख सकते हो, एज वी नो द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस इज़ हाफ, एज वी नो द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस इज़ 0। सो इससे आपका टाइम भी बचेगा और ये शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम 1-2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके कि हम कैसे IRMS फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम उसके बाद अपनी सर्किट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। वैसे आपने ऑलरेडी वीडियोज़ में स्टार्ट कर लिया है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो वोल्टेज क्या होगी, EMF करंट क्या होगा, और उनका फेज़र डायग्राम कैसे होगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से वो सारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।